दिस इज एंथर in TS. Anther is tetragonal. Anther is tetragonal in TS. ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे एंथर इज टेट्रागोनल. दीज आर द स्पोरेंजिया और पोलन सेक. दीज आर द स्पोरेंजिया और पोलन सेक. अगर अपन इसका डायग्राम बनाएंगे, ओनली दिस सेक्शन को अपन ले, इसको अपन ड्रॉ करें, वी कैन सी द वॉल ऑफ द एंथर. एंथर की वॉल में कौन कौन सी लेयर्स होंगी उसको अपन देखेंगे. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. आउटर मोस्ट लेयर इज सिंगल लेयर, सिंगल सेल लेयर. इट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस. इस आउटर मोस्ट लेयर को मैंने कह दिया इट इज एपिडर्मिस. सिंगल लेयर, लेयर ऑफ वन सेल, सिंगल सेल लेयर, दिट इज एपिडर्मिस. इसके नीचे सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम. This is second layer. This is called as endothecium. This is also single cell layer. Single cell की layer है ये endothecium. The third layer that is called as middle layer. This is middle layer. The third layer is middle layer. It is made up of 1 to 3 cell layer. It is made up of 1 to 3 cell layer. 3 cells की लेयर होगी ये, मैक्सिमम 3 cells की लेयर होगी, 1 से लेकर 3 सेल की लेयर होगी, that is middle layer. The innermost layer is single cell layer, that is called as tapetum. This is innermost layer. This is called as tapetum. This is also single layer. The innermost layer is tapetum. The outermost layer is epidermis. In the anther, the outermost layer is epidermis, that is made up of single cell layer, and then endothecium. This is also single cell layer. Then middle layer is made up of 1 to 3 cell layer. This is 1 to 3 cell layer, and tapetum, that is the innermost cell layer, that is called as tapetum. सबसे पहले अपन बात करेंगे एपिडर्मिस की. दिस इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल. ये एंथर की वॉल है, इसकी सबसे बाहर की लेयर है, दैट इज एपिडर्मिस. दिस लेयर इज एपिडर्मिस. इट इज आउटर मोस्ट लेयर एंड द फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज प्रोटेक्शन. आपको पता है एपिडर्मिस कहीं भी प्रेजेंट रहेगी. द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट द एंथर. एंथर को प्रोटेक्ट करना इसका फंक्शन है. दिस इज फर्स्ट लेयर. सेकेंड लेयर की बात करें, दैट इज एंडोथीसियम. एंडोथीसियम, एपिडर्मिस भी सिंगल सेल लेयर है, आपको याद रखना है, इट इज ऑल्सो सिंगल सेल लेयर. एंडोथीसियम की बात करें, एंडोथीसियम इज ऑल्सो सिंगल सेल लेयर. ये सिंगल सेल की लेयर है.
and it is present inner side of epidermis. एपिडर्मिस के जस्ट अंदर प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इनर साइड ऑफ एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के जस्ट अंदर जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज एंडोथीसियम. तो इस लेयर की खास बात क्या है बच्चों, देखो आप लोग, ये एंडोथीसियम है, दिस इज एंडोथीसियम. एंडोथीसियम की सेल्स हैं जो, दीज आर द सेल्स ऑफ एंडोथीसियम लेयर. अब देखो, इन दीज सेल्स दिस इज inner wall, this is inner wall, and this is radial wall. This is inner wall, this is radial wall, inner wall, radial wall. On these inner wall and radial wall there is deposition of alpha cellulose fibers. Deposition of alpha cellulose fibers on the inner and radial wall of endothelium. On the endothelium cells inner and radial wall there is deposition of alpha cellulose fiber and also deposition of callose, also deposition of callose bands. Callose bands या कह दो callose की पत्तियां that are also deposit on the this inner wall and this is radial wall. The inner wall and radial wall of the endothelium there is deposition of alpha cellulose fiber and callose. These alpha cellulose and callose both are carbohydrate. These both are carbohydrate. तो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कौन सी लेयर में डिपॉजिट है, दैट इज डिपॉजिटेड इन द एंडोथीसियम लेयर on the radial and inner wall of cells. deposition of alpha cellulose fiber and callose bands. Callose bands deposition present. क्या फायदा मिलेगा इनके डिपोजिशन से? These are the hygroscopic in the nature. These are actually hygroscopic. Hygroscopic means water attracting. These are the hygroscopic in nature. These fibers deposition, these alpha cellulose fiber deposition helps in the dehiscence of anther. These alpha cellulose fiber deposition helps in dehiscence of या बस्टिंग ऑफ एंथर. डेhiscence मतलब एंथर यहां से बस्ट करेगा, बस्टिंग ऑफ एंथर. These alpha cellulose fibers helps in dehiscence of या बस्टिंग ऑफ एंथर. एंथर कहां से बस्ट करेगा बच्चों? स्टोमियम से बस्ट करेगा. तो क्यों बस्ट करेगा स्टोमियम से? देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ alpha cellulose fiber and callose band. यहाँ स्टोमियम पे ना तो callose bands प्रेजेंट होंगी ना alpha cellulose fiber होंगे. तो जैसे ही alpha cellulose fiber वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो ये यहाँ से इस तरफ पुल अप होगा, ये इस तरफ पुल अप होगा, एंड हियर इन द स्टोमियम देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ this alpha cellulose fiber and bands. It will burst out from here and pollen grains are released from here. तो जो यहाँ पोलन सेक में पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ से रिलीज होंगे. तो कहाँ से बस्ट करेगा बच्चों? बस्ट करेगा स्टोमियम में. स्टोमियम से बस्टिंग के लिए हेल्प कौन कर रहा है? द डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर एंड कैलोज बैंड दैट आर डिपोजिट इन द एंडोथीसियम लेयर.
middle layer. It is made up of 1 to 3 cell layer of parenchymatous cell. ये कौन से सेल्स की बनी होगी? पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होगी। और पेरेनकाइमेटस सेल्स का फंक्शन क्या होता है? टू स्टोर द फूड. सो इन दिस लेयर फूड इज स्टोर्ड in this layer. Food is stored in this layer. इस लेयर में क्या रहेगा? फूड स्टोर्ड रहेगा बच्चों. फूड इज स्टोर्ड इन दिस लेयर ऑफ एंथर. फूड यहाँ स्टोर्ड रहेगा. इस फूड को यूटिलाइज कौन करेगा? देखो अभी देखते हैं अपन. द फोर्थ लेयर इज टेपिटम. Innermost layer of anther wall. Anther wall. This layer absorb the nutrients from the middle layer and provide nutrition to developing pollen grain or microscope. इन देखो यहाँ क्या प्रेजेंट होगा? पोलन सेक में यहाँ प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोर. तो इन माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन कौन देगा? इनको न्यूट्रिशन देगा टेपिटम. टेपिटम के पास खुद का कोई न्यूट्रिशन नहीं है. टेपिटम न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? मिडल लेयर से. टेपिटम सेल जो है दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मिडल लेयर एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स. तो देखो टेपिटम का क्या वर्क है? इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल. It absorbs the nutrients from middle layer and provide nutrition to developing microspores. तो माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेपिटम. तो बताओ मेन न्यूट्रिटिव लेयर किसको कहूंगा मैं? टेपिटम को कहूंगा क्या नहीं कहूंगा? सो टेपिटम इज मेन न्यूट्रिटिव लेयर. मेन न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर. याद रखना बच्चों, टेपिटम इज मेन न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर. वॉल में कितनी लेयर्स होगी? द वॉल ऑफ एंथर इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी सेल लेयर? देखो एक लेयर किसकी होगी? एपिडर्मिस की होगी. एक लेयर एंडोडर्मिस की होगी. 1 to 3 लेयर किसकी होगी? मिडिल लेयर की. और 1 टेपिटम लेयर की. तो इसको काउंट करेंगे 4 to 6. 3 4 5 6. यस सर. 4 to 6 सेल लेयर. अगर अपन कहें एंथर वॉल है, कितनी लेयर थिक है? एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ made up of 4 to 6 cell layer. आपको पता ही है 4 to 6 cell layer. Cells of tapetum are initially diploid. ये 2n है, but they later become the polyploid. Initially it is diploid, later become the polyploid because of the process called as endomitosis. द प्रोसेस, ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है. इट इज इनिशियली डिप्लॉयड. लेटर द क्रोमोसोम नंबर इन द न्यूक्लियस बिकम डबल्ड एंड दिस सेल बिकम द टेट्राप्लॉइड. यहाँ क्या थी? डिप्लॉयड. लेटर इट बिकम टेट्राप्लॉइड एंड देन हेक्साप्लॉइड. तो इसको आप कह सकते हो इट बिकम द पोलीप्लॉइड. तो कौन सी प्रोसेस से पोलीप्लॉइड हुई? याद रखना, दिस इज एंडोमाइटोसिस. ऐसे अगर आप देखोगे इनिशियली टेपिटम सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, लेकिन ड्यू टू द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का क्या मतलब है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन
अभी बताता हूँ बच्चों। इन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन द कैरियोकाइनेसिस या न्यूक्लियर डिवीजन इज फ्री फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। तो देखो टेपिटम सेल में क्या होगा, ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, तो बाई न्यूक्लिएटेड होगी, टेट्रा न्यूक्लिएटेड होगी एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी। तो इनिशियली सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, लेटर बिकम द मल्टी न्यूक्लिएटेड। Tapetum cells later become the multinucleated. The process responsible for this is free nuclear division, and tapetum cells are initially diploid, later become polyploid because of process that is endomitosis. तो आपको लिखना है टेपिटम cells initially diploid and uninucleated, but later become polyploid and multinucleated due to endomitosis and free nuclear division respectively. तो बच्चों अगर क्वेश्चन आए द tapetum cell become multinucleated because of, answer is free nuclear division. अगर क्वेश्चन आए tapetum cell become polyploid because of, the answer is endomitosis. दोनों को आपस में एक्सचेंज मत कर देना, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। अगर ये पूछे टेपिटम सेल बिकम पोलीप्लोइड, द प्रोसेस इज एंडोमाइटोसिस। अगर ये पूछे टेपिटम सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, प्रोसेस इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सर बताओ बच्चों। सर जो पॉलीपेप्टाइड ये मल्टी न्यूक्लियोटाइड सर मैच्योर होने के बाद ही होती है सर? हाँ, मैच्योर हो रही है तब ये पोलीप्लोइड हो जाएगी, मल्टी सर न्यूक्लिएटेड। इसमें फिक्स नहीं होता सर कौन सी मल्टी न्यूक्लियोटाइड की पॉली फिक्स नहीं होता सर इसमें कौन सी पॉलीपेप्टाइड? पोलीप्लोइड देखो, पोली का मतलब मल्टीपल, अगर 2n से ज्यादा जितने भी होंगे, 4n होगी, 8n होगी, 16n होगी, जो सारी क्या है पोलीप्लोइड है, कितनी भी हो सकती है, फिक्स फिक्स नहीं नहीं है, होती है सर? कोई फिक्स नहीं है। ये टेट्राप्लॉइड भी हो सकती है, हेक्साप्लॉइड भी हो सकती है, ऑक्टाप्लॉइड भी, कोई भी फिक्स नहीं है। लिख लिया बच्चों यहाँ तक? आप लोगों को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब देखो टेपिटम लेयर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टेपिटम की लेयर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज मेनी फंक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अपन इसको क्लियरली देखेंगे, इसमें और अपन कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, इसके देखते हैं, आगे चलते हैं। सर हाँ बेटा बताओ। सर ये सर क्रोमोसोम्स नंबर सर इंक्रीज होने के सर कोई स्पेशल एडवांटेज है क्या? नहीं, एडवांटेज नहीं, हो जाता है बस, ये होता है, इसका कोई खास एडवांटेज नहीं है, लेकिन ये हो जाता है इसलिए अपन स्टडी कर रहे हैं, कोई एडवांटेज नहीं है ऐसा। देखो अपन ओके क्या सर। देख रहे थे, ये देखो अपन देख रहे थे एंथर देख रहे थे। अब यहाँ जो पोलन सेक है, माइक्रोस्पोरेंजी है, इसमें माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, लेकिन क्या इसमें शुरू से ही माइक्रोस्पोर होंगे? नहीं, इनिशियली a tissue is present, a tissue is present in this tissue is called as sporogenous tissue. तो अगर मैं कहूं टेपिटम किसको सराउंड करके रखेगी, बताओ बच्चों? टेपिटम सराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू। दीज स्पोरोजिनस टिश्यू, देखो नाम से क्लियर है, स्पोरोजिनस,
क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी। एंथर में प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट है, तो क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर। इट विल फॉर्म द माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर कौन से टिश्यू से बनेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। एंड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, और या इसको कह देंगे पोलेंसेक, sporogenous tissue is present. Sporogenous tissue is present. Sporogenous tissue present है। कैसे बने हैं? देखो, these sporogenous tissue is made up of compactly arranged cell. Compactly arranged cell, ये एक दूसरे के साथ एकदम सटी हुई सेल है। नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। दिस स्पोरोजेनस टिश्यू इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल एंड दीज आर द सिमिलर इन स्ट्रक्चर दीज सेल्स। तो ये सेल्स के होमोजेनस सेल्स एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। तो मैं कह सकता हूँ दिस स्पोरोजेनस टिश्यू मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, स्पोरोजेनस टिश्यू इज मेड अप ऑफ compactly arranged होमोजीनस मतलब एक जैसी होंगी सारी सेल्स, सिमिलर होंगी स्ट्रक्चर में, होमोजीनस सेल्स। तो बच्चों याद रखना ये नीड पॉइंट के व्यू से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोरोजीनस टिश्यू दैट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड का मतलब हो गया नो इंट्रासेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन सेल। ये सेल है, इनके बीच कतई भी कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होगा, तो दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। होमोजीनस मींस ऑल सेल्स आर सिमिलर इन शेप, दैट आर होमोजीनस सेल। तो स्पोरोजीनस टिश्यू इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स। अब बताओ, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये क्या माइक्रोस्पोर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? इट विल फॉर्म द माइक्रोस्पोर। तो क्या मैं इस स्पोरोजिनस टिश्यू को कह सकता हूं माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकता हूं क्या? Yes. इसको मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकता हूं। एंड दीज माइक्रोस्पोर्स आर कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। इन माइक्रोस्पोर को आप पोलन ग्रेन भी कहते हो। तो क्या इसको मैं पोलन मदर सेल कह सकता हूं क्या? यस सर। तो आप ध्यान रखना, दिस स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॉल्ड एज एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी और पोलन ग्रेन मदर सेल, बिकॉज दिस स्पोरोजिनस टिश्यू विल फॉर्म द माइक्रोस्पोर। तो आप लिखो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखो बच्चों, द स्पोरोजिनस टिश्यू, द स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म the sporogenous tissue form the microspore oblique pollen grain. The sporogenous tissue will form the microspore oblique pollen grain. That's why it is called as, that's why it is called as microspore mother cell, MMC. That's why it is called as microspore mother cell, MMC, or pollen mother cell, PMC. अब मेरे को ये बताओ बच्चों, ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, ये हेप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? अभी मियोसिस नहीं हुआ है, अभी मियोसिस नहीं हुआ है, तो ये क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। इसमें मियोसिस से क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे, एंड माइक्रोस्पोर विल बी द हेप्लॉइड। तो बताओ पीएमसी या एमएमसी डिप्लॉइड होगा या हेप्लॉइड होगा? तो बच्चों डिप्लॉइड होगा, तो लिखो पीएमसी एंड एमएमसी आर डिप्लॉइड इन नेचर of tapetum. Function of tapetum. तो फर्स्ट फंक्शन आप सबको पता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स,
तो मैं कह सकता हूं विच लेयर इज मेन न्यूट्रिटिव लेयर, दैट इज टेपिटम, मेन न्यूट्रिटिव लेयर. Which layer is main nutritive layer, that is tapetum. Second is this tapetum cells secrete the sporopollenin. This tapetum cells secrete the sporopollenin. Sporopollenin. क्या होता है ये sporopollenin? इस स्पोरोपोलिन की खास बात क्या है? इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस. इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई एसिड कोई एल्कली इसको डिग्रेड नहीं कर सकता. So this withstand high temperature and strong acids. This sporopollenin, it withstand high temperature and strong acids, alkalis. तो कोई भी एसिड कोई भी एल्कली कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता. सो इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो बताओ ये लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगा कि नहीं, इसके फोसिल्स बनेंगे कि नहीं, ये अर्थ में मिलियंस ऑफ ईयर तक डिपॉजिट रहेगा कि नहीं, विदाउट डिग्रेड हुए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो it is non biodegradable, so it can be present up to long time in the soil. soil में अगर ये पड़ा है तो लंबे टाइम तक मिल जाएगा. तो कहाँ ये प्रेजेंट होता है, बना किससे है? इट इज पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स. इट इज पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स. इट इज फैटी सब्सटेंस. It is polymer of carotenoid and it will form the exine outer wall of pollen grain. कहाँ मिलेगा ये आउटर वॉल बनाएगा, पोलन ग्रेन की आउटर वॉल बनाएगा. तो याद रखना है किससे बने? इट इज द पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड. इट इज फैटी सब्सटेंस. कहाँ प्रेजेंट रहेगा? इट फॉर्म द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन. ये बच्चों पोलन ग्रेन है, उसकी इनर वॉल है. इनर वॉल को क्या कहते हैं? इनर वॉल इज कॉल्ड एज इंटाइन. inner wall of pollen grain is intine, and this outer wall, this outer hard and rough wall is called as exine. This outer wall is called as exine. This exine is made up of sporopollenin. And the intine is made up of pectocellulose. So exine is hard and tough. It is non-biodegradable. ये जल्दी से नष्ट नहीं होगा. Intine is made up of pectocellulose. At some places, this sporopollenin is absent. At some places, this exine is absent. These places are called as germ pore. germ pore. क्या फायदा है germ pore का? पोलन ट्यूब इमर्ज फ्रॉम हेयर. पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब बनेगी पोलन ग्रेन से,
emerge through it. यहां से बाहर निकलेगी। पोलन ट्यूब emerge from the germ pore. Germ pore क्या है? The germ pore are the places where exine is absent. germ pore में क्या होगा? exine absent होगी. The place where exine is absent, that is called as germ pore. germ pore, तो यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। यहाँ से बच्चों पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी। देखो ये पोलन ट्यूब बाहर निकल गई है। तो बताओ पोलन ट्यूब किसकी बनी है? कौन सी लेयर की बनी है पोलन ट्यूब? In time. In time. Very good. Pollen tube is made up of intine. Pollen tube is made up of intine. ये इसका न्यूक्लियस है। तो बताओ इस स्पोरोपोलिन की वजह से पोलन ग्रेन एज ए फॉसिल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सर मिलेंगे। मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो क्यों मिलेंगे? देखो, द पोलन ग्रेन कैन बी फॉसिलाइज्ड। फॉसिलाइज्ड मतलब एज इट इज पड़े रहेंगे, इनके अवशेष पड़े रहेंगे, तो उसको कहेंगे फॉसिल्स। कैन बी फॉसिलाइज्ड अप टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये अर्थ में डिपॉजिट हो गए, उसके ऊपर सोइल की लेयर आ गई। जब उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे यू कैन फाइंड द पोलन ग्रेन। तो अगर आपको पोलन ग्रेन मिल रहा है वहां पे, तो यू कैन से देयर मे बी वेजिटेशन और नॉट। बताओ कभी वहां वेजिटेशन रही होगी क्या नहीं रही होगी? बताओ। Yes, sir. You can estimate, if you find the pollen grain in the soil, you can estimate there must be vegetation that time, and you can find the petrol deposit. पेट्रोल के कुएं उस जगह आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर आपको पेट्रोल का कुआं ढूंढना है तो you can find the fossilized pollen grain, then you can go for that. अगर fossilized pollen grain वहां मिल रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पहले कभी वेजिटेशन रही होगी, यहाँ वेजिटेशन रही होगी, तो यहाँ पेट्रो प्रोडक्ट्स या पेट्रोल का कुआं मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बताओ। मिल सकता है। Yes, sir. मिल Yes, सकता है। तो डिटेक्शन ऑफ दीज फॉसिलाइज्ड पोलन ग्रेन ड्यूरिंग सर्च ऑफ पेट्रो प्रोडक्ट्स। पेट्रोल का कुआं खोद रहे हैं, पेट्रो प्रोडक्ट की सर्च कर रहे हैं, ड्यूरिंग सर्च ऑफ पेट्रो प्रोडक्ट्स if you find the fossilized pollen grain, that then it is very good signal. तो आप आगे जा सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। अगर आपको वहां पोलन ग्रेन मिल रहे हैं, फॉसिलाइज्ड पोलन ग्रेन, तो यू कैन श्योर दैट देयर मे बी पेट्रो प्रोडक्ट, पेट्रोल का कुआं लगा सकते हो आप। अब आप देखो, एक चीज लिखो आप, जो फॉसिलाइजेशन है पोलन ग्रेन का वो किस वजह से है? बताओ। तो आप लिखो फॉसिलाइजेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज ड्यू टू विच लेयर? एक्साइन, स्पोरोपोलेनिन या एक्साइन? कौन सी लेयर की वजह से है? दैट इज ड्यू टू द स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि एक्साइन में क्या प्रेजेंट है? स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है बच्चों। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द फॉसिल रिजर्व। फॉसिल प्रिजर्व में पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज ए फॉसिल्स बिकॉज ऑफ विच सब्सटेंस? कौन से सब्सटेंस की वजह से? Sporulin. स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन आपको याद रखना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई एसिड इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई एल्कली इसको डिग्रेड नहीं करता, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ये डिग्रेड नहीं होगा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट रहेगा। तो दीज पोलन ग्रेन्स आर फॉसिलाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन। याद रखना है स्पोरोपोलेनिन। आगे चलते हैं, थर्ड फंक्शन ऑफ टेपिटम पे चलते हैं।
The third function is secretion of enzyme and hormone. एंजाइम कौन सा सिक्रीट करेगा? सीड, जो पोलन ग्रेन एंजाइम सिक्रीट करेगा, दैट इज केलेज। केलेज एंजाइम, केलेज एंजाइम किस पे वर्क करेगा? वर्क ऑन कौन से सब्सटेंस पे वर्क करेगा? कैलोज। कैलोज सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा। मैंने आपको बताया है सबस्ट्रेट के पीछे एज लगा दें तो एंजाइम बन जाएगा जो सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा। तो कौन से सबस्ट्रेट पे वर्क करेगा? इट वर्क ऑन, इट डिग्रेड द कैलोज। तो अब देखो, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एमएमसी, या पोलन ग्रेन मदर सेल है। इससे मियोसिस से क्या बनेगा? ड्यू टू मियोसिस माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो एमएमसी है, इट इज सराउंडेड बाय कैलोज, इट इज सराउंडेड बाय कैलोज लेयर। कैलोज की लेयर से सराउंड रहेगा। व्हेन देयर इज मियोसिस, तो टेट्राड इज फॉर्म्ड, 4 माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, 1 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। अब ये माइक्रोस्पोर बन गए हैं, बट दे आर स्टिल अटैच्ड विद ईच अदर। क्यों? बिकॉज ऑफ प्लांट सेल के बीच में क्या होता है? प्लांट सेल के बीच में क्या रिलेशन होता है? बताओ। प्लांट सेल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. So still they are attached with each other because of plasmodesmata. So their connection is lost by deposition of callose. इसके अंदर भी callose deposit हो जाएगा and they are detached from each other but still attached with each other. Attached तो रहेंगे but इनका connection टूट जाएगा एक दूसरों से. These are called as microspore tetrad. किसको कह दिया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या डिपॉजिट है ये कैलोज डिपॉजिट है। तो जब ये टेट्राड, अब ये टेट्राड पर एंजाइम एक्ट करेगा, केलेज। केलेज एंजाइम कौन रिलीज कर रहा है? इट इज रिलीज बाय टेपिटम सेल एंड नाउ दीज 4 माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस टेट्राड। ये टेट्राड के 4 माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। तो इनिशियली जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, दे आर रिमेन अटैच्ड विद ईच अदर, तो उनको कह दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो एक पोलन ग्रेन मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बने, 4 माइक्रोस्पोर, दे अटैच्ड विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर टेट्राड, एंड बाय द हेल्प कैलेज these microspores are detached from each other and form the individual microspore or pollen grain. लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडी। द फॉर्मेशन ऑफ यूबिश बॉडी। क्या होती है यूबिश बॉडी? इनिशियली इन द टेपिटम सेल प्रोटीन बॉडी इज फॉर्म्ड। ये प्रोटीन बॉडी बनी है, प्रोटीन रिच बॉडी बनी है इन द टेपिटम सेल। टेपिटम सेल के अंदर ये प्रोटीन बॉडी बनी है। अब टेपिटम सेल सिक्रेट द स्पोरोपोलेनिन ओवर इट। स्पोरोपोलेनिन आपको पता है टेपिटम सेल सिक्रेट करती है। टेपिटम सेल सिक्रेट द स्पोरोपोलेनिन ओवर इट एंड इट विल फॉर्म द, इट विल कन्वर्टेड इनटू, इस प्रोटीन रिच बॉडी को कहेंगे प्रोयूबिश बॉडी। प्रोयूबिश बॉडी, इसको क्या कहा? प्रोयूबिश बॉडी का। अब ड्यू टू द covering of sporopollen, it is converted into Ubish body. Ubish body में क्या है? ये तो प्रोटीन रिच बॉडी होगी। अब इट इज कवर्ड बाय स्पोरोपोलिन, इसके ऊपर स्पोरोपोलिन की कवरिंग होगी। दिस इज स्पोरोपोलिन।
तो it convert the UV body into the pro UV body into the UV body। तो UV body का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? टेपिटम कर रहा है। अब ये UV बॉडी क्या काम आएगी? ये UV बॉडी क्या करेगी? इट एंटर इनटू टेपिटम से बाहर निकलेगी, एंटर इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर आई जाएगी एंड फॉर्म द स्पोरोपोलिन, फॉर्म द एक्साइन ऑफ माइक्रोस्पोर। ये एक्साइन की, माइक्रोस्पोर की एक्साइन बनाएगी, फॉर्म द एक्साइन ऑफ माइक्रोस्पोर। तो यूवी बॉडी किसकी बनी है? स्पोरोपोलिन की बनी है। तो ये एक्साइन बना रही है, तो एक्साइन किसकी बनेगी? एक्साइन इज मेनली मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। Sporopol. तो देखो हुआ क्या बच्चों, ये टेपिटम की सेल है, इसको दोबारा देखो, ये टेपिटम सेल है, ये माइक्रोस्पोर है, दिस इज माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन है। अब देखो यहां दिस इज प्रो यूविश बॉडी, दिस इज प्रो यूविश बॉडी। अब इसके ऊपर स्पोरोपोलिन की कोटिंग होगी, नाउ इट इज कॉल्ड एज यूविश बॉडी। ये स्पोरोपोलिन इसके ऊपर कोट हो गया, दिस इज यूविश बॉडी, इसको कह दिया मैंने प्रो यूविश बॉडी, इसको कह दिया मैंने यूविश बॉडी, प्रो यूविश बॉडी, यूविश बॉडी। दिस यूविश बॉडी एंटर इनटू द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड फॉर्म द एक्साइन। ये एक्साइन बनाएगी, माइक्रोस्पोर की या पोलन ग्रेन की एक्साइन बनाएगी। द फिफ्थ फंक्शन इज सिक्रीशन ऑफ पोलन किट सब्सटेंस। ये पोलन ग्रेन है, दिस इज पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन के ऊपर, इस पोलन ग्रेन के ऊपर इस पोलन ग्रेन के ऊपर येलो वैक्सी substance is deposited over this pollen grain। this pollen grain है, pollen grain के ऊपर yellow waxy substance, yellow fatty या waxy substance is deposited, yellow fatty substance is deposited, that is called as pollen kit। this substance is called as pollen kit। क्या फायदा है इस पोलन किट का? इस पोलन किट का क्या फायदा है? इट इज स्टिकी इन नेचर। इस पोलन किट का फायदा है, इट इज स्टिकी इन नेचर, क्योंकि वैक्सी या फैटी सब्सटेंस है, तो ड्यू टू द ऑयली या फैटी सब्सटेंस इट इज स्टिकी इन नेचर। ये स्टिकी रहेगा नेचर के। जैसे ही इंसेक्ट एंथर पर आकर बैठेगा, दीज पोलन ग्रेन स्टिक ओवर द इंसेक्ट, इंसेक्ट के पैरों पर चिपक जाएंगे, इंसेक्ट के माउथ ऑर्गन, माउथ पार्ट्स पे चिपक जाएंगे, एंड दीज हेल्प इन द पोलिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। क्या पोलिनेशन में ये हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? स्टिकी इन नेचर एंड हेल्प्स इन द पोलिनेशन। तो एक तो ये फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन इज इट प्रोटेक्ट द, या कह दो इट प्रिवेंट द डैमेज of pollen grain from UV rays। it prevent the damage of pollen grain from UV rays।